मोस्टली लोगों को लगता है ना कि फीमेल्स आर वीकर सेक्शन ऑफ द पब्लिक, तो उनको कभी भी कुछ भी कर लो, टॉर्चर कर लो, कुछ भी बोल दो, हम कुछ बोलेंगे नहीं, वी विल बस सुनते रहेंगे, ऐसे करेंगे। हमने आरजेकर रेप केसेस देखे हैं जहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स के साथ रेप थ्रेट्स और ये सब होता है, राइट? एज अ मेल डॉक्टर व्हाट डू यू फील, आपके साथ किस तरीके की वायलेंस और थ्रेट्स आपको फेस करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे? चीज़ें सप्लाई में नहीं है। मेनली चीज़ तो यहाँ पे जनरल चीज़ें तक, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो तक हमारे हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं है। हमारी जैसे पेशेंट के यूरिनरी कैथेटर्स वगैरह होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, कुछ भी इतने अवेलेबल नहीं हो रही है। एक टाइम था जब फीमेल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी हमारी कंट्री में, बट राइट नाउ फीमेल डॉक्टर्स आर इन नंबर गेटिंग रिड्यूस। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे जो वर्बल वायलेंस इन सेल्फ, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो वो 80% बढ़ चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मैं बोलूँ कि फिजिकल असॉल्ट वगैरह, वो डॉक्टर्स के साथ हमारी कंट्री में बहुत बढ़ चुका है। और स्पेसिफिकली मैं कैपिटल सिटी की बात कर रही हूँ। वाई डू यू थिंक, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम अबाउट इट? व्हाई इज इट ऑल हैपनिंग विथ यू गाइज? First of all, I would like to say the access to internet. People think they already know 50% of their disease. They come up with it and आके उन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ पहले वो ट्रीटमेंट दो। जब वो नहीं मिलता है तो they expect a little too much. And I would not say it is only females. Everyone is going through the same thing. Yeah, but we hear cases like Arjikar cases, and there are like so many prominent cases in India right now, specifically with the female doctors, right? So it is more concerning. Also, I would like to mention that people cannot take orders from females that easily. Is that still a problem? That is definitely one of the problems. I face that. People cannot take a strong voice from a female. They cannot take orders, especially male attendants, male patients when they come. It is there is something in their mind. Don't you think this is very ironical कि जब gynecologist की जरूरत होती है तब सिर्फ female हो, but when it comes to other concerns, any other department, you'll have my junior in front of me and I'll be sitting. If they'll ask me for my opinion, they will not think that I'm the senior one. They will think either I'm the junior, I'm the co-PG. They will never think I'm the senior. So I'm so sorry. Always male doctors are given preference, and I have noticed that here in other hospitals as well. So that is also one thing I have. Is ChatGPT collectively creating a problem for you guys? Not really. I've not really experienced it myself, but I'm sure people are experiencing it in private setups. Not here. We do not have enough time to talk to the patients and get to know how much they know. But I'm sure people are experiencing this in the private setup. Ma'am, RML is Central Government College, right? Do you still feel यहाँ पे equipments की कमी हो रही है, medicines की कमी हो रही है, जिस वजह से जो patients का frustration है वो आप पे निकल रहा है, पर problem तो administration की तरफ से आ रही है? This is definitely one concern. It is not just RML. Every single hospital in India is facing shortage of supplies. But on our part, we're doing our best. And definitely the patients, the attendants, they have their own questions, their own concerns about money, about accessibility. But it hasn't turned bad for us yet. But the administration here, they're definitely doing their own part. They're trying out their best. But then attendants and patients, they themselves have to realize that India is still developing. We need our own time, but we need our own patience. So it hasn't turned bad for us. Ma'am, second question with her. There's this one question particularly. हमारे देश के अंदर अगर मैं अभी इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर आई, there are very less guards, है ना? तो मुझे सेफ्टी आपको कितनी मिल रही है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर? सॉरी, सेफ्टी का तो इशू है एक, जो हम ऑलरेडी अपने आगे बोल चुके हैं। तो हाँ, ये गार्ड्स कम होने की वजह से हमें एटलीस्ट यहाँ पे वार्ड में आके कोई भी पेशेंट हम पे चिल्ला के चला जाता है। एंड जब तक गार्ड्स आते हैं तब तक ऑलरेडी वो लोग लड़ाई करके सुना के जा चुके होते हैं। तो वो गार्ड्स का इशू है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, एक्चुअली हर जगह लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। Are you, if you don't mind, this is not an offensive question, but आप सब लोग जनरल कैटेगरी के लोग हैं? Everyone. है ना, ठीक है। So do you think the reservation in our country right now is creating a problem when it comes to quality and quantity of a doctor in our country? Because हर साल 20 लाख बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, उसमें से अगर 10 लाख भी निकाल ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, इनफैक्ट अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, अभी भी यहाँ पर भी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की बहुत इश्यूज आ रही है। So where do you think is the vacuum actually creating? Is because internet and media and everybody out there are saying कि the real problem is the reservation in our country. As a doctor, what do you think is the problem?
रिजर्वेशन भी एक इशू बोल सकते हैं, बट इट डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन रिजर्वेशन. मतलब एग्ज़ाम डिलेज और ये सब चीज़ें भी हैं जो क्यूमुलेटिवली इस चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं. लाइक नीट पीजी बोला कब जाता है, होता कब है, रिजल्ट कब आता है, तो उस वजह से आधे लोग फ्रस्ट्रेटेड होके बीच में ही गिव अप कर देते हैं कि हम कुछ और ही प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम से ही नहीं हो रहा है तो फिर कोई उस चीज़ में अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करेगा. तो रिजर्वेशन से ज़्यादा अभी तो जो डिले इन द एग्ज़ाम प्रोसेस है वो ज़्यादा है. सो बेसिकली हर एक सेक्टर्स में आप देखते हो एक चीज़ कि मेल और फीमेल का जो पे रेट होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे डॉक्टर में ऐसा कुछ होता है? No. No. ओके. एंड फीमेल्स एज ये तो लोगों की एक स्टीरियोटिपिकल चीज़ है. उसके अलावा आप लोग एज अ फीमेल डॉक्टर व्हाट आर यू फेसिंग नाउअडेज? व्हाट इज द लाइक मेजर इश्यूज which outside world does not know about it and you're suffering it from inside? You've mentioned safety. I've mentioned the stereotype of not taking orders from a female senior. And I think these are the two gender-based problems I've faced. Nothing. Work-life balance out here for the doctors. See, हमारे इंडिया में work-life balance डॉक्टर्स के लिए है ही नहीं. एज अ मीडिया पर्सन हमारे लिए भी बहुत कम है, पर फिर भी हमें एक दिन की छुट्टी मिल जाती है. तो जरूरी है कि डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस हो ही नहीं सकता हमारी कंट्री में. मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इतना स्टाफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप लोग को एक बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हो? ये स्टाफ की कमी की वजह से हो रहा है कि नॉट एनफ डॉक्टर्स आर रिक्रूटेड. लाइक कंपेयर टू द डॉक्टर द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज. मतलब ये सिटीज़ में, विलेजेस में, हर जगह में है. जितने डॉक्टर्स है, लाइक डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो हमारे कंट्री में, लाइक फॉर एवरी 100 पेशेंट देयर इज़ 1 डॉक्टर. आई थिंक इट इज़ इवन मोर देन दैट. तो हमारे देश में यही मेन प्रॉब्लम है कि कॉलेजेस कम हैं. अभी गवर्नमेंट इवन दो सीट्स बढ़ा रही है बट रिक्रूटमेंट कम हो रही है. मेडिकल स्टूडेंट्स कम है बट गवर्नमेंट लेवल पे तो रिक्रूटमेंट कम हो रही है. पर हमारे कंट्री में अब जो कहते हैं इनरोलमेंट रेट है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, वो भी एक बढ़ता जा रहा है. उसके बावजूद भी डॉक्टर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं? दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन. वो हमें भी नहीं पता. तो इसीलिए ना सिस्टम का कहीं पे तो फॉल्ट है कि क्योंकि एक ही डॉक्टर ज़्यादा काम कर रहा है बार बार. वही मतलब सिर्फ कुछ ही डॉक्टर्स है लाइक हु आर सफरिंग क्योंकि नहीं हो रहा है. ये गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, नीट पीजी के सीट्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, बट फिर भी देयर इज अ शॉर्टेज. देयर इज स्टिल अ ह्यूज शॉर्टेज इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा. Other than shortage, what do you think is the problem? Regarding work-life balance? Work-life balance for the doctor. I mean, it depends on which setup you're working. When it comes to a hospital like RML, definitely there is no work-life balance. Because it is a government hospital, that is why. Yes. If I Sorry for my interrupting you, but do you think कि private colleges की situation government colleges से बहुत better है? I won't say that, because college, as a student, for us learning is the most important thing. For that we need more patience, we need more exposure. So government hospital gives us that. That's why high cutoff goes for government hospitals. In private hospitals they might not have that much patient load, but definitely facility wise they will have better facilities. So pros भी है, cons भी है, but work wise government hospital में ज़्यादा load है. जब डॉक्टरी में जाने के लिए सबसे ज़्यादा फीमेल आगे बढ़ के आती थी, और आजकल इंडिया के अंदर इतने ढेर सारे डॉक्टर्स के खिलाफ थ्रेट हो गए, और स्पेसिफिकली एज अ फीमेल डू यू फील सेफ दैट दिस प्रोफेशन इज सेफ फॉर यू? It's not like every place is unsafe, but it depends. है ना? Sometimes it is not like we don't have good accommodation. Naisa, we have 24 hours, but we don't have separate rooms, which is very safe. That kind of issues are there. ऑल्सो एज अ पीडियट्रिशियन आपको क्या लगता है कि आपके जो फीमेल डॉक्टर्स इस टाइम पर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो नीट पेपर लीक हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से डू यू थिंक दैट दिस प्रोफेशन विल फ्लरिश इन द कमिंग टाइम? Profession though it will flourish, but the issues are there actually. The NEET PG it affects a lot of people. Some may go into different kind of, this AI kind of thing has come. That much hike won't be there, I feel. Some मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर के पे रेट में कोई डिफरेंस तो नहीं होता है ना? नहीं. That is similar, right? हाँ. Thank you. As we all know, for doctors out here,
इंडिया में सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इतने डॉक्टर्स हर साल रिक्रूट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर 80% वर्बल वायलेंस बढ़ रहा है, 49% वायलेंस आपके यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ रहा है। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन दैट? आई फील इसका फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम है पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जिनके साथ वो आते हैं। दे रियली एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द डॉक्टर्स। मतलब पेशेंट की कई बार हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, बिकॉज एक पॉइंट तक ही डॉक्टर्स कुछ पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। कई बार प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, कई बार ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, रिस्क होता है हर ट्रीटमेंट का। बट कई बार अटेंडेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पूरी तरह से ठीक ही कर देंगे एकदम पहले जैसा, या फिर कुछ भी हो जाए वो ठीक है। दैट undue expectation creates an anger. Doctor, I need to ask this one question with you. So basically हम सबको पता है कि हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके वजह से बहुत से ऐसे उस वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जनरल पब्लिक जो मतलब द वन हु आर कमिंग अंडर जनरल, उनका अगर नंबर 600 से ऊपर आ रहा है, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द सेंट्रल कॉलेजेस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। उस रिजर्वेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की क्वालिटी में एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं बन रही है हमारे देश में। Basically, do you think reservation is causing or degrading the quality of doctors in our country? Yeah, I do feel कि the way जिस तरीके से reserved seats बढ़ती जा रही हैं and open seats कम हो रही हैं, then that is really a problem because merit उस meritorious students के उससे कम हो रहे हैं, and that definitely affects the overall quality. हमने आरजेकर रेप केसेस देखे हैं जहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स के साथ रेप थ्रेट्स और ये सब होता है, राइट। एज अ मेल डॉक्टर व्हाट डू यू फील, आपके साथ किस तरीके की वायलेंस और थ्रेट्स आपको फेस करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे? थ्रेट बेसिकली यही है कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन में आता है, कई बार यहाँ पे आईसीयू की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो जस्ट पेशेंट्स कई बार एंगर में आते हैं कि नहीं आप देखिए कुछ ना कुछ करिए। दैट इज ओनली द थ्रेट। स्पेशल पे हमने डॉक्टर्स की तो बात कर ली, बट एक नर्स का साइड क्या है मैम? हम बेसिकली देख रहे हैं इन आर कैपिटल सिटी इटसेल्फ 80% वर्बल वायलेंस डॉक्टर्स के प्रति और नर्सेस के प्रति और बढ़ता जा रहा है। बट एज अ डॉक्टर लोगों के पास फिर भी एक क्राइटेरिया हो जाता है, लोग चुप हो जाते हैं, अपना काम निकलवाना होता है। बट एक नर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है? क्योंकि स्टीरियोटाइपिकली नर्स को बेसिकली बहुत से लोग सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट वेटर्स जैसा भी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। डू यू अग्री विद दैट एंटायर थिंग? बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे लोग बोल देते हैं, यहाँ पे हाँ अच्छे हाई फाई पीपल आते हैं, उनको लगता है कि हाँ नर्सेस तो कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, मतलब ये दे दो वो दे दो, कभी कुछ डिग्रेड करके बात कर लेंगे, कुछ भी मतलब फीलिंग मतलब रेस्पेक्ट तो मिलती नहीं, कभी कभी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं। सिस्टर जी करके भी बोलने में भी लोग को वो होता है, नर्स करके बोल देंगे, डॉक्टर को हम लोग सर बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, उनको अलग सा रेस्पेक्ट मिलता है, सिस्टर को तो कभी रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है, तो होता है। मैम आप नर्सिंग ऑफिसर हो, ये आरएमएल की नर्सिंग ऑफिसर है मैम, अभी भी कमिंग ऑन दिस लेवल आपको फिर अभी भी कौन कौन सी परेशानियां फील करने पड़ती है? मतलब डॉक्टर्स और सिस्टर्स में थोड़ी सी डिफरेंसेस तो दिखाते ही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या अभी भी पार्किंग के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉक्टर्स को स्पेशल पार्किंग व्हीकल पार्किंग के लिए फैसिलिटीज है, सिस्टर्स को वो भी नहीं है। हमारी बाहर Why so? नो नहीं पता नहीं, कैंटीन का जो डॉक्टर्स हॉस्टल में कैंटीन है वो डॉक्टर्स के लिए ही है, नर्सेस के लिए कहीं स्पेशली कोई कैंटीन नहीं है। सिंस यू आर फ्रॉम केरला और दिल्ली के बीच में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल सिटी में ये डिस्क्रिमिनेशन है या फिर ऑल ओवर नेशन में? पता नहीं, हो सकता है ऑल ओवर नेशन ही हो, हमें तो इतना पता नहीं है बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर ओनली। तो मेरे हिसाब से तो आरएमएल में तो ऐसा नहीं है ही, क्योंकि डिपार्टमेंट कैंटीन है जो एक जनरल कैंटीन है फॉर द पेशेंट्स, सिस्टर्स, वर्कर्स, एवरीबॉडी। डॉक्टर्स वहाँ नहीं जाते। डॉक्टर्स साइड में स्पेशल कैंटीन है, अलग सा ही है, वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए है, स्पेशल पार्किंग फॉर डॉक्टर्स, स्पेशल कैंटीन फॉर डॉक्टर्स, एवरीथिंग स्पेशली फॉर डॉक्टर्स ओनली। अभी डॉक्टर्स हॉस्टल बड़ा सा बना है हमारे आरएमएल में, वो सब है। अब यहाँ पे हमारे को पार्किंग के लिए भी बोलते हैं, पार्किंग करो, बाहर जाके करो पार्किंग। नाइट में हमारी शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, हम जब रात को 9 बजे तक जाना पड़ता है, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो कहाँ बाहर जाके पार्किंग करेंगे? कुत्ते बिल्ली वर्दर सब घूमते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट सेफ, नॉट इवन फॉर द डॉक्टर्स और सिस्टर्स, नर्सेस। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है,
वो अब किस लेवल में है, क्यों है, वो तो हमें भी नहीं पता। मैम हम 2026 में आ चुके हैं। ये स्टीरियोटाइप ना डॉक्टर नर्सेस के बीच में तो मुझे नहीं लग रहा अभी इतना खत्म हो पाया है, बट ऑन द अदर हैंड नर्सेस में बेसिकली हम देखते हैं तो फीमेल्स कैंडिडेट ज्यादा होती है, राइट? तो अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 49% फिजिकल वायलेंस अब्यूज बढ़ चुका है इस टाइम पे। और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, प्राइवेट की तो आप छोड़ ही दो, ठीक है? तो मतलब आपको क्या क्या चीजें और फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ वायलेंस आउट हियर, और क्यों होता है ये वायलेंस? बिकॉज वी आर फीमेल्स। मोस्टली लोगों को लगता है ना कि फीमेल्स आर वीकर सेक्शन ऑफ द पब्लिक, तो उनको कभी भी कुछ भी कर लो, टॉर्चर कर लो, कुछ भी बोल दो, हम कुछ बोलेंगे नहीं, वी विल बस सुनते रहेंगे, ऐसे करेंगे। हो सकता है इसी वजह से हो। यहाँ पे भी हम लोग फीमेल्स, हम लोग वर्कर्स अकेले रहते हैं, हम लोग नाइट ड्यूटी में अकेले होते हैं, वी डोंट हैव एनी गार्ड ओवर हियर, तो इट्स ओपन। कभी भी कोई भी आ सकता है, यहाँ पे वार्ड्स खुले हुए हैं, सीढ़ियाँ खुली हुई है, anybody can come and harm us, but we have to, we are doing our duty because it's our duty to take care of our patients, so we are praying and doing that. मैम जस्ट बिकॉज नीट पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा वायलेंस इंडिया में बढ़ रहा है और कैपिटल सिटीज में बढ़ रहा है, तब तो आप छोटे छोटे सिटीज का तो आप छोड़ ही दो, ठीक है, पता नहीं चलता, न्यूज़ तो हमें पता नहीं चलती है ना? तो इसके वजह से अब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आर दे चूजिंग लेस द डॉक्टरी पार्ट? No, I don't think so, because doctors are coming, females are more, but हो सकता है किसी के अंदर मेंटालिटी हो कि इट्स सेफ फॉर अस, तो बट वही है, बच्चों में आजकल डॉक्टर्स बनने का थोड़ा सा कम चल रहा है। आई हैव 2 daughters, कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर बने। Why so? बिकॉज दे आर वॉचिंग द न्यूज़ ना, दे आर Gen Zs nowadays, तो ये है कि बच्चों का है कि कि मतलब वो आसपास देखते हैं क्या क्या चल रहा है हमारी फैमिली और सोसाइटी में। सोसाइटी इज़ नॉट सेफ फॉर फीमेल्स टिल डेट, इट्स नॉट सेफ कि क्या क्या नहीं होता है। तो डॉक्टर्स हो चाहे कितनी भी प्रोफेशनलिज्म कुछ भी हो जाए, रैगिंग एंड ऑल दैट थिंग इज स्टिल प्रिवेलिंग, तो हो सकता है उस वजह से हो, बच्चों के अंदर मेंटालिटी आजकल ऐसे बन रही हो, तो वो वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। वही है मैम सबसे बड़ी चीज कि अभी भी मैं देख रही हूँ हॉस्पिटल के अंदर हाइजीन तो बहुत अच्छे तरीके से है, बट क्या रेगुलर जो मेडिसिन होती हैं, फिर आपकी जो ऊपर से जितने भी सिग्नेचर्स आते हैं, जो हायरार्की फॉलो होती है गवर्नमेंट साइड से और प्रोसीजर्स होते हैं, क्या अभी भी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है पेशेंट्स को आप तक रीच आउट करने में, चीजें सप्लाई में नहीं है। मेनली चीज़ तो यहाँ पे जनरल चीज़ें तक, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो तक हमारे हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं है। हमारे जैसे पेशेंट के यूरिनरी कैथेटर्स वगैरह होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, कुछ भी इतने अवेलेबल नहीं हो रही है, वो तक भी नॉट एनए लिस्ट में, नॉट अवेलेबल। तो क्या कर सकते हैं, कैनुला जो पेशेंट को यूज़ करनी होती है वो सब भी कभी कभी एनए हो जाती है, तो मिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इतनी बड़ी हॉस्पिटल में अगर ऐसी चीज़ें एनए है, जो सिरिंजेस आ रही हैं, IV सेट्स आ रहे हैं, जो है वो भी बिल्कुल सिरिंज तक नहीं मिल पा रही है टाइम पे, क्वालिटी की है, आ रही है। Why so, ma'am? Why so? I mean, we are in the capital city. That may be because of corruption. I don't know. But what is the health minister doing all of that? Do you guys complain for it? We are not in a situation to complain. The hierarchy has to complain about that. तो वो सब देखेंगे। अब तो हम तो बताते हैं, we give the क्या बोलते हैं हम उसको, अपना फीडबैक देते हैं कि वी आर वर्किंग इन दिस कंडीशन, वी डोंट हैव दिस फैसिलिटीज, वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द पेशेंट्स आर आस्किंग, जब वी हैव फिलिंग द फीडबैक फॉर्म फॉर देम ना, तो वी आर आस्किंग देम, तो उसमें होता है कि आपको सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हुई हैं, मेडिसिन अवेलेबल हुई हैं, तो वो बोलते नहीं हमारे को तो नहीं हो, कुछ लोग बोलते नहीं मिलती है, तो बट वही है अब जिसको शायद वही एक रीजन है कि लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है और फिर ये सब कुछ हो रहा है, राइट? तो आप मैनेजमेंट की तरफ से भी परेशान हो, लोगों की तरफ से भी परेशान हो, तो डॉक्टर इन आवर कंट्री राइट नाउ एक कहते हैं ना एक बर्गर की तरफ पिसता जा रहा है, बीच में वो एक पैटी हो गई है, राइट? दैट इज ट्रू. This is my collective question for every brave doctors out here. As a female doctor, हमारे देश में ना लड़कियां अब डर रही हैं from becoming a doctor because they are like कि इतने cases हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. What one piece of advice, despite all the odds, you want to still give to them? You know, as a small girl, when you have aspired to become a doctor, versus now when you see the reality, even after that, you still want to continue this. What is letting you continue this entirely? I have no other option. Oh my God. That should have been answer. But जिसको भी करना है, there's always a way. There will always be incidents, but you just have to get through it. If you are willing for it, you should go for it. Do it if you want to. Don't do it because others are pressurizing you.
I mean, passion is everything. So if you're passionate about what you're doing, nothing feels like a burden. Okay, so this was the story and the insight what we have got from RML doctors out here. And let's just see, for every single buddy and female aspirants who are still going for doctors and still not understanding what is the insider level issues out here, I hope this inside news will be some useful to you. Thank you so much. And if you want such more ground reports, do not forget to like, share and subscribe Global Shark. Thank you so much.